Good morning, class 11. So, this is a lecture 2 of chemical bonding and molecular structure, unit 4, right, of chemistry. So, first of all, welcome to my channel, Brain Gam. If you like the video, please like and subscribe the channel. Now, proceeding to the topic, we are having lecture 2. The topic which we are going to discuss here, that is a Lewis structure. As you can see, an example I have given to you here, that is an oxygen molecule, right? Here you can see oxygen is having how many electrons? You already know valence electron of oxygen. How many oxygen valence electron are there in oxygen? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also oxygen is having 6 electrons. So both the oxygen atoms, they want to complete their octet. So as they want to complete their octet, so what will happen? They do sharing in between. So after sharing of electron, they result in the formation of two bonds between the oxygen atoms, which leads to an oxygen molecule. Now in case of Lewis structure, what we are going to do, we are going to represent the bonds in the form of electron dots. Right, as in the last video also we have discussed that we will represent the bond in the form of electron dot. So here also we are going to represent the bonds in the form of electron dot. Okay, so this is the basic example I have taken. Now I am going to discuss another example by following few of the rules which are given while drawing a Lewis structure. Okay, so the next Lewis formula which I am going to make, okay, next Lewis formula that I am going to make, this is the one. So the next one I am going to make, that is of carbon monoxide, that is CO. Next formula I am going to make, that is of carbon monoxide. Now first of all, what you have to do, the first step for writing the Lewis formula, first of all you just have to count the total number of, step 1 क्या होता है आपका, step 1, count the total number of valence electrons. Okay, you have to count the valence electrons for each element. Present in the formula. Okay, you have to count. Now as you know, first the two elements are present here, carbon and oxygen. So carbon is having how many valence electrons? Carbon is having 4 valence electron. What about oxygen? How many electrons oxygen is having? Oxygen is having 6 valence electron. So total valence electron in this structure we are having 10, right? 4 of this. So total valence electron are there 10. So this is the first rule which you have to keep in mind while making the Lewis structure, that आपको क्या करना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है. जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हर एलिमेंट के लेके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे इसके लिए, यू हैव टू, स्टेप 2 आपका क्या होगा, add the electron which are present as a negative charge और lone pair. आपको पता है ना lone pair क्या होता है? Lone pair means this is lone pair.
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को एक लोन पेयर मानते हैं, ठीक है। या तो नेगेटिव चार्ज हो अगर या उसके ऊपर लोन पेयर हो तो उसको भी आपने ऐड अप करना है, लेकिन ये फार्मूला आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का गिवन है। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई एक्स्ट्रा कोई लोन पेयर नहीं बनाया हुआ। सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप यही होगा, इफ़ एनी पॉजिटिव चार्ज इज देयर देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is the step 2 and 3. Next step will be we have to make the skeleton structure of carbon monoxide. That would be the expected one. So the next step we are having, step 4 we can say, draw the skeleton structure. Okay, you have to draw skeletal structure of the given formula, expected, that what you are expecting here. Okay, you have to draw that. So accordingly, this is carbon, this is oxygen, this is the skeleton structure, right? We are having only 2 elements, so I have written those. Next step, step 5 will be make the single bond between the respective elements. अब आपने क्या करना है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. I have made a single bond between the two. As you know, a bond is formed by what? Sharing of 2 electron, 1 from each element. So this is the step 5. Next step will be step 6. That step 6 will be what? Write the rest of valence electrons on the respective atom elements, sorry, respective elements, right? So here we are having carbon and we are having oxygen, right? So what will happen? ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है, देखिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऐसा मान लें, ठीक है, वी थिंक लाइक दिस कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन इज शेयरिंग इट्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, व्हाट विल हैपन दैट वी एक्सपेक्ट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. सी 2 3 के कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया ऑक्सीजन के साथ. ना ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद 5 इलेक्ट्रॉन. कुछ ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इन एक्चुअल एज यू कैन सी इस पर ना तो इसका कुछ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. सो नेक्स्ट वन, मतलब दिस इज़ लाइक अ हिट एंड ट्रायल मैथड. सो नेक्स्ट वन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं, देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज लाइक दिस विद द ट्रिपल बॉन्ड. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, एज ऑक्टेट ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन इज इनकम्प्लीट. स्टेप आपको ऐसे ही माइंड में रखने हैं. आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर, इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, आप उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं. आपको जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो काउंट करने हैं. सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा लुईस रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी लाइक दिस. अब देखिए, आप कहेंगे कि कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाउ कार्बन इज़ मेकिंग 1 2 3 बॉन्ड 4 5, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कार्बन के पास. और कार्बन देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बट ऐसा नहीं है. सो कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन इज शेयरिंग इट्स 1 and 2 इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 होते हैं ना. See, oxygen is having how many electron, 1 2 3 4 5 6. oxygen is having how many electron, 6, है ना. तो अब ऑक्सीजन क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है 2.
अब जो थर्ड बॉन्ड होगा वो कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर देगा। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नेक्स्ट बॉन्ड जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में होगा दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो ऑक्सीजन कार्बन को डोनेट करेगा। ठीक है, सो अब कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे वो ऐसे पड़े रहेंगे। सो लाइक दिस type of structure is formed. This is the Lewis structure of carbon monoxide. Now we will discuss more structures based on this concept. Okay, so the next example I am going to take, that will be of ozone. So ozone is having what formula? O3. Oxygen is having ozone is having 3 oxygen. सो वही सारी चीज़ें हैं, आप उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। सो वेलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें काउंट करोगे तो ईच ऑक्सीजन इज हैविंग हाउ मेनी वेलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सो टोटल 6, मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। सो कितने आएंगे टोटल? 18 वेलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, यू कैन सी इट्स जस्ट अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हेयर। सो इसमें कोई एडअप या कोई सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब उसके बाद जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल आई डू, सी पहले हम इसका स्केलेटन बनाएंगे। सो स्केलेटन स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया मेरे पास स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन ओजोन। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में दोनों साइड वी हैव टू मेंटेन सिंगल बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये मैंने सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, आई हैव रिप्रेजेंटेड अ सिंगल बॉन्ड। दिस इज़ नथिंग, ये पेंसिल के साथ मैं इरेज कर देती हूँ, ये कुछ ऐसी डॉट आ गया है। सो वी आर हैविंग दिस वन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास मैंने जब ये सिंगल बॉन्ड बना दिया तो हमें पता है कि हर ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन इज़ हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इफ़ ऑक्सीजन इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीजन ने हर ऑक्सीजन ने 1 अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ किया। सो ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5 5 5 5 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन रह जाता है। ठीक है, लेकिन अनदर कंसेप्ट आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है दैट ऑलवेज मेक 2 बॉन्ड। ओके, अब आपका जो ऑक्सीजन है हाउ मेनी बॉन्ड इट मेक? इट विल मेक 2 बॉन्ड, राइट। सो अगर आपका ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो आप क्या करोगे? यू आर हैविंग अ सेंट्रल ऑक्सीजन, राइट। एंड आप ऑक्सीजन को नंबर दे लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मतलब ये सिंपल ट्रिक है। आप क्या कर सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि आपका एलिमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव कितने बॉन्ड बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ, अगर ये 2 बॉन्ड इधर बना ले, 2 बॉन्ड इधर बना ले, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब सेंटर वाला ऑक्सीजन तो स्टेबल ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई वट विल हैपन हेयर, जो ये ऑक्सीजन है ये वन साइड इट विल मेक डबल बॉन्ड, another side it will make a coordinate bond. So actually the expected structure, the actual structure of this one ozone is like this: oxygen that is making double bond on one side, another side it is making coordinate bond. Now this oxygen, how many electron it is sharing? 1 2 3 and 4. So this is left with how many electron? 2, with 1 positive charge, and this oxygen is having all the 3 electron present as such, and this is having how many? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन here। बेटा समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी और एलिमेंट के साथ। इट लेफ्ट विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बट व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन ओजोन, ओजोन में क्या होता है? 3 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। सो व्हाट विल हैपन? ईच ऑक्सीजन इज हैव टू स्टेबल इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन होता है व्हाट इट विल डू, इट विल डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर करने थे दैट इज शेयरिंग विद दिस नंबर 1 ऑक्सीजन, राइट। सो अब जब ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन उसके चले गए, सो ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके पास इलेक्ट्रॉन की। दैट्स वाई इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, राइट, बिकॉज इसने अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, और इसके पास 6 ऑलरेडी थे, 2 और मिल गए इसको। सो दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, right, like this. Another example I am going to take here, that will be of phosphine. Okay, next is phosphine. Phosphine that is having formula pH 3.
नाउ फॉस्फोरस हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यू ऑलरेडी नो, कितने होते हैं उसके पास, 5, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 1 1। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए ये हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, ये हाइड्रोजन, मैंने उसका पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया। आफ्टर मेकिंग स्केलेटन स्ट्रक्चर वी आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, मैंने बना दिए, 1 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन। हाइड्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता, हाइड्रोजन में क्या कंप्लीट करना होता है, डुप्लेट। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। फॉस्फोरस का देखिए 1 2 3 4 5 तो उसके अपने थे, 6 7 8। फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक दैट विल बी ऑफ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड डाइफ्लोराइड, ओके, BeF2। अब यहाँ पे देखिए जब हम बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बेरिलियम इज हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। बेरिलियम देखिए 1s2 2s2, बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हम जब फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन इज हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आई विल मेक बेरिलियम इन द सेंटर, फ्लोरीन फ्लोरीन। सो फ्लोरीन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इधर आ गए, 7 यहाँ आ गए, और बेरिलियम के पास हमारे कितने होते हैं, 2। तो देखिए हो गए कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर एक फ्लोरीन के लिए काउंट करने हुए। जब बेरिलियम के लिए आप काउंट करोगे तो बेरिलियम के बन जाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और जब आप इसके लिए काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। बेरिलियम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ये भी एक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड रहेगा, क्योंकि बेरिलियम को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेरिलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास 4 होते लाइक कार्बन देन इट कुड बी देयर। सो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ना ही इसका डुप्लेट होगा बन रहा होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन की, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो ये एक लुईस स्ट्रक्चर था बेरिलियम F2 का, ओके। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू मेक दैट इज ऑफ BCl3। जब हम BCl3 की बात करेंगे, सो वी आर हैविंग बोरोन, क्लोरीन, 3 क्लोरीन, आई हैव मेड अ स्केलेटन स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने फ्लोरीन के पास होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। अब बोरॉन के पास कितने होते हैं, देखिए बोरॉन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। सो टोटल कितने हुए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास। सो 3 यहाँ पे तीनों के साथ उसने शेयर कर लिए, और ये लुईस रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, BCl3 की। यहाँ भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा व्हेन यू विल सी, लेकिन बोरॉन का जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, क्योंकि बोरॉन में 1 2 3 4 5 6 से इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अब 2 अभी पेंडिंग है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, okay. So like this you can make Lewis structure of any of the compound if you want to make, right। आप किसी की भी ऐसे Lewis structure बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी होगा तो जस्ट आपको इलेक्ट्रॉन डॉट ही तो रिप्रेजेंट करना है उसको। आप स्टेप फॉलो करना चाहते हो, दैट्स योर विश। इफ़ यू डोंट वांट टू फॉलो द स्टेप यू कैन गो डायरेक्ट फॉर दिस। आप डायरेक्टली भी इसके लिए आप लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी अंदाज़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट लुईस स्ट्रक्चर। थैंक यू।